Hello, dear students. How are you? I hope you are fine. You are most welcome in online classes Divine Public Senior Secondary School, Maharajganj. Students, today we are going to discuss class 10th Geography, Chapter 1, Part 2, and the chapter name is Resource. Students, in the previous lecture, we have discussed about definition of resource and types of resource. Students, we have also discussed in the types of resource on the basis of origin, biotic and abiotic, on the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable, on the basis of ownership, individual, community, national and international. Okay students, today we have to discuss development of resource. Okay, let's start this topic. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gift of nature. Human beings used them indiscriminately, and this has led to the following major problem. And what is the problem? The first point is given here: depletion of resource for satisfying the greed of few individuals. Second, accumulation of resource in few hands, which in turn divided the society into two segments, that is haves and have nots, or rich and poor. And third point and last point of this topic, indiscriminate exploitation of resource has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. Okay students, let's understand दिस टॉपिक इन द प्रॉपर वे. डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स यानी हम लोग इसको कहते हैं संसाधनों का विकास. हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे. संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है. ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है. परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई थी. अब क्या समस्या है उसको देखेंगे हम लोग. कुछ व्यक्तियों की लालचवश संसाधनों का बहुत ज़्यादा ह्रास हुआ है. संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में बट गया है, यानी एक समाज गरीब और एक समाज संपन्न. संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितियां संकट पैदा हो गई हैं, जैसे कि भूमंडलीय तापन, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ओजोन परत में अपक्षय हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं और भूमि निम्नीकरण यानी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. ये थोड़ा सा डिमेरिट्स हैं ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के. अब सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया यानी भारत में संसाधन की नियोजन. First point given, identification and inventory of resources across the region of the country. This involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resource. Second point, evolving a planning structure endowed with a appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plan. And third and last point of this topic, matching the resource development plans with overall national development plans. Okay student, let's understand this topic in the proper way. यानी संसाधन का नियोजन, अगर हम केस स्टडी की बात करें तो भारत के केस स्टडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति होती है. इसलिए भारत जैसे देशों में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यानी भारत एक ऐसा देश है जहां पर रिसोर्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है और कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर रिसोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है. यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है. कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है. अगर हम एग्जाम्पल लें तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं में खनिज और कोयले की प्रचुर मात्रा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, लेकिन वहाँ पर मूल विकास की कमी है. राजस्थान में पवन
और सौर ऊर्जा का संसाधन बहुतायत है, लेकिन जल संसाधन की वहाँ पर कमी है। लद्दाख के बारे में आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा लद्दाख, जहाँ पर कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख का शीत मरुस्थल, इसको हम लोग कहते हैं शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट, देश के अन्य भागों से अलग थलग, इसको थोड़ा सा अलग कर देता है हमारे देश से। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का एक धनी जगह है, परंतु यहाँ जल की कमी है, आधारभूत अवसंरचना की कमी है, कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की भी कमी है। इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, यानी संसाधनों का संरक्षण। द फर्स्ट पॉइंट गिवन ऑफ दिस टॉपिक, resource conservation at various level is important. Second, Gandhiji was very apt in voicing his concern about resource conservation in this world. There is enough for everybody's need and not for anybody's greed. यानी संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। थोड़ा सा स्टूडेंट हम लोग इसको और प्रॉपर वे में समझते हैं। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आप लोग इस बात को जानते ही हैं, परंतु संसाधन का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तर पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। जैसे कि अगर हम गांधी जी का एग्जाम्पल लें, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में प्रयुक्त की है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। यानी गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स ये हम लोग मतलब फिनिश कर दिए। अब 6 पॉइंट है यहाँ पर लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन को हम लोग कहते हैं उपयोग। लैंड का मतलब भूमि, यानी भूमि का किस तरह उपयोग होता है। देखिए यहाँ पर दिया है एक पाई चार्ट, इसमें तकरीबन 43% लैंड पे प्लांट्स हैं और 30% माउंटेन हैं एंड 27% प्लेट्यू हैं, यानी 43% पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, 30% पर्वत हैं और 27% पठार हैं। प्लेट्यू को हम लोग कहते हैं पठार। लैंड रिसोर्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज: forest land not available for cultivation. A है barren and wasteland. B है land put to non-agriculture uses, that is building, roads, factories, etc. Third point, other uncultivated land including fallow land. A permanent pasture and grazing land. B land under miscellaneous trees, crops, groves not included in zone area. And C cultivable wasteland, fallow lands, current fallow other than current fallow। यानी हम थोड़ा इसको समझते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन यानी भूमि उपयोग, इसमें देखिए मतलब कैसे कैसे भारत के पूरे एरिया में लैंड का इस्तेमाल किया गया है, इसमें पूरा समझाया गया है। बंजर भूमि और ऐसी जगह पर जहाँ पर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, रहने के लिए आवास बनाए गए हैं, फॉरेस्ट भी हैं, वेजिटेशन भी हैं और क्रॉपिंग भी किया जाता है, माउंटेन भी है, प्लेटू भी हैं। यानी लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे देश में लैंड का इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाता है, यही सब बताया है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, आज का यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।